Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th. Student, this is video number 36 and in this video we are going to discuss about the calculation of national income by the expenditure method. Student, this is the last method of calculating national income and before proceeding further in this video, student, let me remind you that we have covered two more methods of calculating national income in the previous video. That was first value added method, that is also called as product method. Second was income method. In this video we are going to discuss about the expenditure method. So children, as the name suggests, expenditure in an economy done by the all the sectors like household, government, firm and export and import, means rest of the world also. So when we include all the expenditure done by the residents in an economy, the sum total of this expenditure is always equal to national income. Because in the previous video I already told you, during the production process, when the firm organizing the factor of production do the production of commodity goods and services, so income generated, whatever income is generated in the production process, that income is distributed and the same income is spent by the household or anybody else. Whatever income is generated is always spent. So the circle is continue, move on. So whatever income is generated, the same income is distributed and same income is spent, that is called as disposition or expenditure. So in the previous video we have calculated national income using the value added method and income method. Okay? Here is we are going to discuss about expenditure method. Before proceeding further, children, let me remind you one more point. You calculate the national income by any method, whether you use value added method, income method और expenditure method, but the value will remain same. वैल्यू हमेशा सेम आएगी चाहे आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, और उसका रीजन वो है जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी इनकम जनरेट हुई चिल्ड्रन उतनी डिस्ट्रीब्यूट हुई और उतनी ही ले जाकर लोग एक्सपेंड करेंगे या स्पेंड करेंगे या एक्सपेंडिचर करेंगे, जो भी करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए जो वैल्यू है वो सेम आएगी. अब एग्जाम में आप करोगे क्या कि अगर कोई क्वेश्चन आया है और उसमें लिखा है कि कैलकुलेट द नेशनल इनकम विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, so you will check the information, what kind of information is given in the question, right? And according to that the method you will use for solving the question. कि आप ये देखोगे किस टाइप का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी है. अगर वैल्यू एडेड से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कि उसमें सेल दिया हुआ है, सेलिंग, ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है और उसमें इंपोर्ट के बारे में है, एक्सपोर्ट के बारे में है, तो फिर आप उसमें वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करेंगे. अगर उसमें यहाँ पे इनकम के बारे में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, वेजेस इज काइंड एंड कैश गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, रेट इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, मिक्स इनकम है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप इनकम मेथड यूज करेंगे. लेकिन अगर ये दोनों नहीं दिए हुए हैं तो फिर आपके पास एक ही मेथड बचता है और उस मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड. एंड ऑब्वियसली इन दैट क्वेश्चन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. तो आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन. फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन को चेक करेंगे. डेफिनेशन में लिखा क्या है. सो चिल्ड्रन, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. ये वो उसका टोटल है चिल्ड्रन जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, या फिर कुल मिलाकर रेसिडेंट के थ्रू, नॉर्मल रेसिडेंट जो हैं इकोनॉमी के या अपनी कंट्री के, उनके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में. चिल्ड्रन ध्यान रखें, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट का जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंडिचर, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड. ठीक है, पहले देखिए हाउस होल्ड आ गया, फिर बिजनेस फॉर्म्स आ गया, एंड गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स. हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसको, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका जो टोटल है, दैट एक्सपेंडिचर इज डन बाय वेदर हाउस होल्ड, बिजनेस फॉर्म. बिजनेस फॉर्म का मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन फॉर्म्स भी आप कह सकते हो, एंड गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. जब इन सारे एक्सपेंडिचर का हम टोटल कर देते हैं चिल्ड्रन, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं. ठीक है, तो ये तो चिल्ड्रन हो गया डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद हम लोग आते हैं चिल्ड्रन कंपोनेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन, फाइनल एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट्स ऑफ
फाइनल एक्सपेंडिचर। जो फाइनल एक्सपेंडिचर हम जो टोटल करेंगे उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, या ये कह सकते हो कि वो फार्मूला कौन सा है जो हम नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो उस मेथड को चिल्ड्रन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वैसे तो यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है चिल्ड्रन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन जो है वो किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, या फिर ये एक्सपेंडिचर किया जाता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट और इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो ये चिल्ड्रन जो एक्सपेंडिचर है, जैसे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने ड्यूरेबल गुड परचेज कर लिया या नॉन ड्यूरेबल परचेज कर लिया, या फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स में जो भी उसने परचेज किया, ऐसे जो प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने भी अपने लिए कंजम्पशन के लिए स्पेशली जो परचेज, क्योंकि इसमें देखते हो जैसे कि ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड ने, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूशन ने फाइनल कंजम्पशन के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया है वो इसके कंपोनेंट होते हैं। दूसरे चिल्ड्रन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने देखा होगा चिल्ड्रन की गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूं कि डिफेंस की, तो जिसमें हमारी मिलिट्री आ जाती है, नेवी आ जाती है और एयरफोर्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने देखा है कितना इनके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद पब्लिक गुड्स में गवर्नमेंट बहुत सारा इन्वेस्ट करती है। सड़क बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे बनाना है। उसके बाद कुछ पब्लिक गुड्स है जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है। ये जो पब्लिक गुड्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो ये तो हो गया गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद आता है चिल्ड्रन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है कि देखिए इन दोनों में तो फाइनल कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा ग्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन की कंजम्पशन के लिए मोस्टली किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो हो रहा है चिल्ड्रन, लेकिन उसके बदले में कुछ कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके दो पार्ट है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट हैं यहाँ पर। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चिल्ड्रन चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चिल्ड्रन गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, हाउस होल्ड का भी है, प्राइवेट फर्म का भी है। तो हाउस होल्ड से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। तो अगर हाउस होल्ड ने कोई न्यू हाउस परचेज किया है या उसने कोई कंस्ट्रक्शन करके नया हाउस बनवा रहे हैं, तो ये फिक्स कैपिटल उसके लिए एक तरीके से बन गया, या कोई शॉप बनवा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चिल्ड्रन फर्म की बात करूँ, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक्सपेंडिचर, तो उसने क्या किया, कोई न्यू इक्विपमेंट परचेज किया है, न्यू मशीनरी परचेज किया है, ठीक है। तो क्या है कि ये न्यू मशीन जो परचेज किया है, ये इसका एक्सपेंडिचर तो हुआ, लेकिन उसके बदले में उसके कैपिटलाई यानी कि मशीनरी और उसको यूज करके वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा। गवर्नमेंट का चिड़ी इसमें गवर्नमेंट ने रोड बनवा दिया, फ्लाईओवर बनवा दिया, तो गवर्नमेंट का खर्चा तो हुआ, लेकिन कुछ कैपिटल बनी और उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ठीक है। और दूसरा चिल्ड्रन लास्ट जो है इसका कंपोनेंट वो आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब चिल्ड्रन है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से हम इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज नेट एक्सपोर्ट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको पहले से पता है, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये तो हो गए चिल्ड्रन इसके कंपोनेंट। अब इसको हम जब इन सभी का चिल्ड्रन हम टोटल कैलकुलेट करके निकालेंगे, और उसको कैलकुलेट करके निकालने से पहले चिल्ड्रन एक बार इस फार्मूले को हम लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसी को लिख रहा हूँ मैं, अलग से कुछ नहीं चिल्ड्रन। तो आप देख लीजिए एक बार, ये तो हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चिल्ड्रन दोनों ही जो एक्सपेंडिचर है ये कंजम्पशन के लिए है स्पेशली, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है चाहे वो हाउस होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
और लास्ट में चिल्ड्रन हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक चिल्ड्रन, अब जब हम इस पूरे जितने भी हैं इन सभी को जब हम चिल्ड्रन टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम चिल्ड्रन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ग्रॉस है तो ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा पूरा फार्मूला। जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन तो आप उसमें ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये दोनों इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन स्पेशली क्वेश्चन में रहते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चिल्ड्रन आपको गड़बड़ है। कभी कभी क्या है कि चिल्ड्रन अगर आपको जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह चिल्ड्रन कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब चिल्ड्रन ये है कि इसमें से ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ये गिवन नहीं है और ये भी गिवन है, तो फिर आप इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन की चिल्ड्रन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। और कभी कभी क्या होता है चिल्ड्रन, ये दोनों भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहती है और इसकी जगह पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है क्वेश्चन में। एक तो लिखा रहता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा रहता है चिल्ड्रन हमारे पास एक तो रहता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। और कभी कभी चिल्ड्रन क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अगर चेंज इन स्टॉक चिल्ड्रन पहले से लिखा हुआ है तो फिर वेल एंड गुड, ये आप इसको इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये दोनों ही जो पार्ट है चिल्ड्रन, एक ये और ये दोनों आपके इसमें मिक्स हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो ये दोनों लिखे हैं तो चलिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेट एक्सपोर्ट भी कभी कभी नहीं दिया रहता है चिल्ड्रन, वहाँ पर लिखा रहता है एक्सपोर्ट और दूसरा लिखा रहता है इम्पोर्ट्स। तो इसमें भी चिल्ड्रन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोर्ट में से आप ठीक है ना इंपोर्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी, वो आप उसमें ऐड कर देंगे। तो ये था चिल्ड्रन फार्मूले के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। चिल्ड्रन कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो तीनों में ही कॉमन है, वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो या फिर एक्सपेंडिचर मेथड हो। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपको बार बार बताया है कि फाइनल गुड को ही हम कंसिडर करते हैं। फाइनल गुड्स की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी। इंटरमीडिएट जो कॉस्ट है या इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो इंक्लूड नहीं होगा। और उसका रीज़न ये है चिल्ड्रन कि इंटरमीडिएट कॉस्ट में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो जाके फाइनल जो गुड की जो वैल्यू होती है उसका एक पार्ट बन जाता है। तो अगर हमने फाइनल गुड की वैल्यू में इंटरमीडिएट कॉस्ट को फिर से ऐड कर देंगे तो चिल्ड्रन वो डबल काउंटिंग हो जाएगी और इससे जो हमारी नेशनल इनकम आएगी वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा चिल्ड्रन एक और था कॉमन जो मैं आपको याद दिला दूँ, वो ये था कि सेकेंड हैंड जो गुड है उनको सेल या परचेज करने पर या उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड को सेल या परचेज करने पर कोई ब्रोकरेज है या कोई कमीशन आपको मिला है तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ट्रांसफ़र इनकम को भी चिल्ड्रन इंक्लूड नहीं किया जाता है किसी मेथड में, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो। ट्रांसफ़र इनकम जिसमें कि स्कॉलरशिप हो गया, गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, इसको भी चिल्ड्रन हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन जो फर्स्ट प्रिकॉशन है वो ये है, एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये हमने आपको बता दिया, ये बहुत ईजी है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा चिल्ड्रन ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये भी आपको पता है, ठीक है। थर्ड जो था परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये देखिए ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, हमने आपको बता दिया अभी। परचेज ऑफ फिनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, फिनेंशियल एसेट्स में चिल्ड्रन क्या है कि जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, अगर इससे आपको इनकम हो रही है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में किसी भी मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसका रीजन ये है चिल्ड्रन कि इसकी वजह से कोई एडिशनल जो है जो गुड्स और सर्विसेज में चिल्ड्रन इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये जस्ट पेपर क्लेम है, ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। अगर अपने खुद के जो बिल्डिंग है, अगर उसको आपने उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रखा है और उसका कोई रेंटेड इनकम आता है तो वो भी जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये था चिल्ड्रन नेशनल इनकम का कैलकुलेशन यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है चिल्ड्रन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड चिल्ड्रन वन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से इकोनॉमी आपको अच्छे समझ में आ रही है तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। आपका बेनिफिट तो हो ही रहा है, उनका भी बेनिफिट होगा, और अगर आप दोनों का बेनिफिट होगा तो चिल्ड्रन मेरा भी बेनिफिट होगा। सो चिल्ड्रन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।